This talk is about standards for the reviewing the effectiveness of quality assurance and accreditation bodies. Effectiveness of quality assurance and accreditation bodies is reviewed with the purpose of supporting the quality assurance and accreditation bodies in their efforts to constantly review and enhance their effectiveness. जो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी दूसरे इदारों को यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी को देखती है, इसी तरह क्रेडिटेशन बॉडीज़ जो हैं वो जैसे नेक्टी एजुकेशन के प्रोग्राम्स को देखती है, इसी तरह पीईसी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को देखती है, पीएमसी मेडिकल के प्रोग्राम्स को देखती है। तो उनकी ये जो बॉडीज़ हैं इनकी भी तो क्रेडिटेशन होनी चाहिए, इनका भी तो रिव्यू होना चाहिए। तो इस रिव्यू को हम कहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एक्रेडिटेशन बॉडीज रिव्यू। इसका मकसद ये होता है ताकि इन बॉडीज की जो एफर्ट हैं वो अपने काम को रिव्यू करने की और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की उसमें उनकी हेल्प की जा सके। पॉइंट 2 इज complete detail of standards, expectations, expected outcome indicators, indicative evidence and guidelines is part of the next video. इसके बाद एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसका लिंक इसके कमेंट सेक्शन में होगा, जिसमें एक स्टैंडर्ड को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। पहला एक्सपेक्टेशन होगा, दूसरा एक्सपेक्टेड आउटकम इंडिकेटर्स होगा, तीसरा इंडिकेटिव एविडेंस होगा, चौथा गाइडलाइंस होगा। तो इसकी मदद से इन्हीं जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो 14 स्टैंडर्ड्स हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन लेवल का नॉलेज हासिल किया जा सकेगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद एक ओवरव्यू देना है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जान सकें। In this video, general description of standards will be discussed only. So these are 14 standards. Standard 1, official status of quality assurance and accreditation bodies. Standard 2, activities, policy and processes for quality assurance and accreditation bodies. Standard 3, independence. Standard 4, thematic analysis. Standard 5, institutional resources. Standard 6, internal quality assurance and professional conduct. Cyclical external review of quality assurance and accreditation bodies. Standard 8, consideration of internal quality assurance. Standard 9, designing methodologies fit for purpose. Standard 10, implementing processes. Standard 11, review panel and peer review experts. Standard 12, criteria for outcomes. Standard 13, reporting. Standard 14, complaints and appeals. Now Standard 1 in little bit detail. Official status of quality assurance and accreditation bodies. Quality assurance and accreditation bodies should have an established legal basis and should be formally recognized as quality assurance bodies or entities by the competent public or government authorities. जितनी भी जो क्वालिटी एश्योरेंस की बॉडीज़ है, एजेंसी है या कोई accreditation बॉडीज़ हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इनकी अप्रूवल होनी चाहिए, इनका लीगल एंटिटी होनी चाहिए, इसका एक कानूनी वजूद होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वजूद होना चाहिए, एक इसका फंक्शनल वजूद होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड 1 है, यानी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ का ऑफिशियल स्टेटस हो, यानी सरकारी तौर पर ये काम कर रही हों। क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ की जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। Quality assurance and accreditation bodies should have clear and explicit set of
policies, procedures, rules, regulations, which are consistent with defined goals and objectives that are part of their publicly available mission statement. So जो क्वालिटी अश्योरेंस और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उनके जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, एक तो वो क्लियर हों, दूसरा वो किसी डिफाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ सिंक करते हों, तीसरा वो पब्लिकली अवेलेबल हों. Point 3 is quality assurance and accreditation bodies should translate into daily work of quality assurance and accreditation bodies. यानी जो क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उनका डे टू डे काम भी क्वालिटी एश्योरेंस का ही होना चाहिए. Quality assurance bodies and entities should ensure the involvement of stakeholders in their governance and work. यानी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज का जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है और काम है उसको स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके करना चाहिए, उनके मशवरे से करना चाहिए. अब हम आते हैं स्टैंडर्ड 3 की तरफ. स्टैंडर्ड 3 इज इंडिपेंडेंस. Quality assurance and accreditation bodies should be independent and act autonomously. ये जो क्वालिटी एश्योरेंस एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्रेशर में ना हो, और इनको ऑटोनोमी के साथ काम करना है. पॉइंट 2 इज quality assurance and accreditation bodies should have full responsibility for their operations and outcomes of their operations without third party influence. So ये अपने काम में और काम के नताइज में बिल्कुल आज़ाद होने चाहिए. Standard 4 Thematic Analysis. Quality assurance and accreditation bodies should regularly publish reports that describe and analyze general findings of their external quality assurance activities. So जितनी भी एक्सटर्नल जो क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर इन बॉडीज़ को उनका एनालिसिस भी करना है, उसको डिस्क्राइब भी करना है, और उसकी फाइंडिंग जो हैं एक्सटर्नल बॉडीज़ के लिए भी अवेलेबल हों. क्यों अवेलेबल हों? इसलिए कि इनके जो तजर्बात हैं, एक तो वो अदारे हैं जिनको इन्होंने विज़िट किया, लेकिन इस तरह की फाइंडिंग जो सामने आती हैं वो अदारे भी उससे बेनिफिट लेते हैं जिनको इन्होंने विज़िट नहीं किया, अभी करना है, और वो भी फाइंडिंग को देखकर बहुत सारी जो क्वालिटी इन्हेंसमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनको एडवांस में ही कर लेते हैं. स्टैंडर्ड 5 इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज. Quality assurance and accreditation bodies should have adequate and appropriate resources including human, financial, virtual, technological resources to carry out their work. अब अगर क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे फंक्शन करेंगी? इनके पास इंसानी वसाइल, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, ये तमाम तरह के रिसोर्सेज होने चाहिए. नंबर 6 इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल कंडक्ट. Quality assurance and accreditation bodies should have in place well-defined policies and processes for internal quality assurance related to defining, assuring, and continuously enhancing the quality and integrity of their activities. So, quality assurance जो quality assurance accreditation bodies जो हैं उनके पास एक वेल डिफाइंड पॉलिसीज इन प्लेस होनी चाहिए, प्रोसेसेस इन प्लेस होनी चाहिए उनके इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और उन्होंने अपने काम को डिफाइन किया हो और अपने काम को कॉन्टीन्यूसली बेटर कर रहे हों, और उनकी ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्वालिटी को बेहतर करने वाली और इंटेग्रिटी भी हो, यानी सही मानों में वो क्वालिटीज़ को, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सही रूह के साथ कर सकें, ऑनेस्टली कर सकें, ईमानदारी से कर सकें, उनके उन मकासद के लिए कर सकें जिस मकासद के लिए वो करनी चाहिए. स्टैंडर्ड 7 साइक्लिकल एक्सटर्नल रिव्यू ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज. ऑफ कोर्स क्वालिटी एश्योरेंस
और एक्रेडिटेशन बॉडीज का एक साइक्लिक एक्सटर्नल रिव्यू भी होना चाहिए. Quality assurance and accreditation bodies should undergo an external review at least once every 5 years in order to demonstrate their compliance with the international best practices and Pakistan precepts. So, quality assurance and accreditation bodies का 5 साल में कम अज़ कम एक दफ़ा एक्सटर्नल रिव्यू होना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन हो और पाकिस्तानी जो रूल्स हैं उनके साथ भी अलाइन हो. रूल्स से मराद उसकी पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, पूरी तफसीलात शामिल हैं. स्टैंडर्ड 8 कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस. इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस की कंसिडरेशन तो बहुत ज़रूरी है. External quality assurance should address the effectiveness of internal quality assurance processes described in the Pakistan precepts and prepare the institution for external review. So, जिस तरह एक इंटरनल रिव्यू होता है, एक एक्सटर्नल रिव्यू होता है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट होती है, उस सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को एक्सटर्नल रिव्यू वाले देखते हैं, तो इसी तरह जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उनको भी अपना इंटरनल रिव्यू करना चाहिए. इससे उनकी एक्सटर्नल रिव्यू के लिए तैयारी भी होगी और वो जो पाकिस्तानी कवानीन है, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ ऑटो लाइन भी होंगे. यानी किसी बाहर से किसी अदारे को इन्वॉल्व किए बगैर खुद उनका ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर जाएगा जिससे वो अपने आप को इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और पाकिस्तानी कवानीन के साथ अलाइन करते रहेंगे. स्टैंडर्ड 9 डिजाइनिंग मेथडोलॉजीज फिट फॉर पर्पस. सो मेथडोलॉजीज डिजाइन करनी है जो फिट फॉर द पर्पस हो. 1 एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस शुड बी डिफाइंड एंड डिजाइन स्पेसिफिकली to ensure its fitness to achieve the aims and objectives set for it, while taking into account relevant regulations. So, अगर हम इसको देखें तो जो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसको डिफाइन किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली इस काम के लिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट फॉर इट. क्या वो जो ऑब्जेक्टिव उनके सेट किए गए उसके मुताबिक है, वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट रेलेवेंट रेगुलेशंस. यानी जो एक्सटर्नल जो रिव्यू है वो ये देखता है क्या ये अदारा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है उन रूल्स के अंदर रह के जो उसके लिए सेट किए गए हों. यानी सीधी सी बात यह है कि अदारा फंक्शन कर रहा हो और राइट्स सबके जो है वो प्रिजर्व हों, किसी के राइट्स मुतासर ना हो, यानी रूल ऑफ लॉ भी हो. यानी ये अदारा फंक्शन भी करे और मुतलका कवानीन के अंदर रह के करे. नंबर 2 स्टेक होल्डर्स शुड बी इन्वॉल्व इन इट्स डिज़ाइन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए उसको बनाने में और उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में. अगर आप बार बार देखें तो स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र है. इसके 2 बड़े बेनिफिट्स हासिल होते हैं. एक तो कलेक्टिव नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, दूसरा फंक्शन में कोई भी ग्रुप जो है वो नुकसान में नहीं रहता. यानी तमाम ग्रुपों के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं. यानी एक ब्रॉड लेवल पर विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है. स्टैंडर्ड 10 implementing process. External quality assurance processes should be reliable, useful, predefined, implemented consistently and published. जो external quality assurance processes हैं वो reliable हों, मुफीद हों, पहले से वाज़े हों, कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेड हों और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो भी पब्लिश हों और उनके ये जो सारा रिव्यू है वो एडवांस में पब्लिश हो. मकसद तमाम रिव्यूज़ का इम्प्रूवमेंट है, लेबलिंग नहीं है. तो जितना इनको पहले पब्लिश करेंगे, पहले बताएंगे,
जब वो अदारा एक्सटर्नल रिव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है तो वही लम्हा है जब वो क्वालिटी में इन्हेंस कर रहा होता है। नंबर 2, they include a self-assessment or equivalent or an external assessment, normally including a site visit, a report, consulting for the external assessment and consistent follow-up। तो इसमें क्या शामिल होता है जी, एक जो है वो सेल्फ असेसमेंट यानी इंटरनल असेसमेंट है, उसके बाद एक एक्सटर्नल असेसमेंट होती है। एक्सटर्नल असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट को भी देखती है, उस साइट को भी देखती है, यानी देखती है कि इंटरनल असेसमेंट कितनी फेयर है, और उसको फिर जो वो जो इंटरनल असेसमेंट में जो गैप्स थे उनको इंटरनली कितना पूरा करने की कोशिश की, उसके बाद जो एक्सटर्नल असेसमेंट के गैप्स थे उनको पूरा करने के लिए कितनी कोशिश की गई और फ्यूचर में कितनी कोशिश किए जाने का इम्कान है। तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो रिव्यू किया जाता है। Standard 11, Review Panel or Peer Review Experts। External quality assurance should be carried out by groups of external experts that may include a student member also। So students are neglected in the review process, तो इसमें कहा गया है कि उनको भी हम पार्ट बनाएं। Standard 12, Criteria for Outcomes। सो जब भी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये क्राइटेरिया ओपन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। आइए देखते हैं। Any outcome or judgment made as a result of external quality assurance should be based on explicit and published criteria। यानी जिस क्राइटेरिया पर हमने विजिट करना है, जिस क्राइटेरिया पर उसकी लेबलिंग करनी है, वो वाज़े भी हो और पब्लिश हो। That are applied consistently अप्लाई होंगे irrespective of whether the process leads to a formal decision। यानी इस बात पर तवज्जो नहीं दी जाएगी कि इस क्राइटेरिया के तहत रिजल्ट क्या निकलता है, जो भी निकले, लेकिन उस क्राइटेरिया को कंसिस्टेंटली सब पर एक जैसा अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड 13 रिपोर्टिंग है। फुल रिपोर्ट्स बाय द एक्सपर्ट्स शुड बी पब्लिश्ड इन लाइजन विद द इंस्टीट्यूशन। सो जो रिपोर्ट होगी, जो एक्सपर्ट्स बनाएंगे, उसको उस अदारे के साथ शेयर किया जाएगा, उनके साथ मिलके बनाया जाएगा, ताकि अगर कोई ऑब्जर्वेशन में कमी रह गई है, अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव की वजह से कोई उसमें किसी तरह का इनहराफ है, तो उसको वहीं कवर कर लिया जाए। नंबर 2, दे शुड बी क्लियर एंड एक्सेसिबल to the academic community, external partners and their interested individuals। यानी ये जो रिपोर्ट्स होंगी किसी इदारे के बारे में, ये सबको अवेलेबल होंगी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि वो भी इसे जान सकें और बहुत सारी सूरतों में अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। नंबर 3, इफ़ द क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज टेक एनी फॉर्मल डिसीजन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, द डिसीजन शुड बी पब्लिश टुगेदर विद द रिपोर्ट। अगर जो अदारे हैं एक्रेडिटेशन क्वालिटी एश्योरेंस एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं, अगर कोई डिसीजन लेती हैं तो वो अपना डिसीजन भी पब्लिश करना होगा और वो रिपोर्ट भी पब्लिश करना होगी जिसके तहत वो डिसीजन लिया गया है, ताकि वो डिसीजन डाटा की बेस पर हो, अपनी किसी पसंद नापसंद की वजह से ना हो। स्टैंडर्ड 14 है कंप्लेंट्स एंड अपील्स। ग्रीवियंसेस तो लाजमी हिस्सा है किसी भी अच्छे सिस्टम का। कंप्लेंट्स एंड अपील्स प्रोसेसेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस। कंप्लेंट कैसे लॉन्च होंगी, किन बातों पर लॉन्च होंगी, ये पहले ही क्लियर होगा और हम उस अदारे को क्लियर कर देंगे जिसको हमने विजिट करना है, वैल्यूएट करना है, ताकि कोई इबहम ना रहे, ताकि अगर कोई उनकी ग्रीवियंसेस हैं वो ड्रेस हो जाएं। और ग्रीवियंसेस बाज़ का बहुत जेन्युइन होते हैं कि वो रिव्यू टीम बहुत सारे फैक्ट्स को देख ही नहीं पाती, जो फैक्ट्स एक डिसीजन मेकिंग में बाज़ का बड़ा क्रूशियल पार्ट अदा करते हैं। ये थी हमारी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स। 14 स्टैंडर्ड्स हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस एक्रेडिटेशन बॉडीज़ की इफेक्टिवनेस को रिव्यू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रहे कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो बॉडीज़ यूनिवर्सिटियों को देखती थी, कॉलेजेस को देखती थी,
उनके रिव्यू का कोई बंदोबस्त नहीं था। जो नया जो है वो पाकिस्तान प्रिसेप्ट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस 2023 में ये एक ऑप्शन भी रखा गया है कि वो अदारों का भी रिव्यू किया जाएगा, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाएंगे। तो हमने 14 स्टैंडर्ड्स पर बात की, जिसमें स्टैंडर्ड 1 था ऑफिशियल स्टेटस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज, दूसरा था एक्टिविटीज़ पॉलिसीज प्रोसेसेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज, तीसरा इंडिपेंडेंस था, चौथा थीमेटिक एनालिसिस है, पांचवा इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज है, छठा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल कंडक्ट है, सातवां साइक्लिकल एक्सटर्नल रिव्यू ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज है, आठवां कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस है, नाइन्थ डिजाइनिंग मेथडोलॉजीज फिट फॉर पर्पस है, दसवां इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस है, जो 11th है रिव्यू पैनल एंड पीयर रिव्यू एक्सपर्ट्स, 12th क्राइटेरिया फॉर आउटकम्स, 13th reporting, and 14 complaints and appeals. Thank you very much for being with me. See you in the next talk.